Hello friends, I am Dr. Ankit Bhargav. First of all, I would like to give my sincere thanks to Dr. R.K. Mudgil for inviting me for this wonderful event, Physio Harcon 2020. And today's I'm going to take a topic on importance of proper curriculum in physiotherapy quality education system. See, basically, people talk about nowadays for the upliftment or the physiotherapy. And what I feel is upliftment always comes up from the grassroots level, and it should come up from the grassroots level, because if your students are well to do enough to know perform in the market, you can you you can always uplift your profession, because you know that physiotherapists are the combination of all, because they have a knowledge of surgery, they have a knowledge of medicine, they have a knowledge of the machines, they have a knowledge of exercise therapy, they have a knowledge of complete biomechanics. So technically they are the human engineers, what I tells that. So I feel that importance of curriculum, because the proper curriculum, it is really important, because proper curriculum will give you the insight to the student, that how they can proceed into their career, how they have to, it should be like that, they should learn the things step by step. So first of all, to get into the proper quality education of physiotherapy, you should have a few prior things. First thing, good quality teachers. Good quality teachers means they should know how to teach. First, they should have their own proper knowledge, and third thing, they have their proper own, they are willing to learn something new day by day. Then only they can learn and teach to the students. Second thing, you have a proper infrastructure, you have a proper labs, you have a proper curriculum, and last but not the least, you have a open minded thinking. So which we are lacking in the market nowadays. And you know that in India, maximum of the curriculums, they are running from past so many years, and everywhere you will find the different curriculum, but maximum of the curriculum you will see the common in each to each other. But none of the curriculum in India, they thought about to upgrade their curriculum, and add some latest updated techniques, or it should be on the focus on the research. So I tell you, what kind of curriculum it should be there, and how it should be divided step by step, so that student will learn step by step and grow themselves properly. And by the end of their 4 years and 4.5 years, they are well versed in theory, they will be well versed in practicals, they will be well versed in research. So might be this video can be helpful to the curriculum makers, because I had made some curriculums, I had developed and developed some programs for the industries, universities and all. So I found the results quite interesting into it. Okay, let's talk about first what kind of curriculum it should be. See, अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे फिजियोस जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं इंडिया के, और व्हेन दे गो फॉर द इवैल्यूएशन, उनके कुछ पॉइंट्स लैकिंग आते हैं। और वो पॉइंट्स लैकिंग क्यों आते हैं? बिकॉज द करिकुलम इट इज़ नॉट एट पार। ओके, अब हम बात करते हैं कि मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि फर्स्ट ईयर आपका जनरल विद बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड ईयर आपका थोड़ा सा एडवांस होना चाहिए, एंड इंट्रोडक्शन टू द टेक्निक्स और द एरिया which they are going to learn, or which they are doing the degree. Third thing, it should be advanced level, and fourth, it should be specific with upgraded knowledge, right? ये होना चाहिए along with the research. तो फर्स्ट ईयर में आपने देखा हो कि आपके बहुत सारे कॉलेजेस में खाली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, और ज़्यादा से ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री और साइकोलॉजी, उसमें ये करिकुलम उनका ख़त्म हो जाता है पूरे एक साल का। जबकि फर्स्ट ईयर में मेरा ये मानना है कि आपके जनरल सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए, जैसे कंप्यूटर्स होना चाहिए, जैसे आपको बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, जैसे आपका साइकोलॉजी होना चाहिए, जैसे आपके बेसिक नर्सिंग फर्स्ट एड होना चाहिए, देन आपका योगा होना चाहिए, देन यू शुड हैव एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एक्सेट्रा।
राइट। तो इस तरह के आपके उसमें आपके जो मतलब आपके जो टेक्निकल कोर्सेज हैं वो 2 या 3 हो, बाकी जनरल हो, और इसके अलावा आप जो काम करने वाले हो उससे रिलेटेड हो, राइट। फिर आपका सेकंड ईयर में आपका इंट्रोड्यूस होना चाहिए एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एंड देन आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का तो हो ही चुका है पूरा 1 साल, काफ़ी है उतना। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन बायोमैकेनिक्स इंट्रोड्यूस होना चाहिए। जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपका सेकंड ईयर में होना चाहिए अलॉन्ग विद द मेडिकल सब्जेक्ट्स, जैसे आपका ऑर्थोपेडिक्स है, जैसे आपका मेडिसिन है, जैसे आपका फार्माकोलॉजी है। तो ये सारी मतलब जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो सारा आपका सेकंड ईयर में आ जाना चाहिए, ताकि थर्ड ईयर जो है आपके बच्चों के लिए, बच्चे का बेस बन चुका हो 2 साल, और थर्ड ईयर में बच्चा जो है अपना टेक्निकल में जाए। जैसे वो अपने बायोमैकेनिक्स के एडवांस वर्जन पढ़े, रिसर्च पढ़ना चाहिए उसके अंदर उसको। देन उसके बाद वो अपना न्यूरो सर्जरी, कार्डियो सर्जरी, गायनेकोलॉजी, देन आपका साइकियाट्री, तो जो बचे हुए सब्जेक्ट्स आपके बचते हैं आपके मेडिकल के और फिजियोथेरेपी के, वो पढ़ाने चाहिए। और उसके बाद और उसी दौरान आपके आपके करिकुलम के अंदर आपका कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स आनी चाहिए, जैसे अलाइड थेरेपीज़ आनी चाहिए, मसाज आना चाहिए, देन मैनुअल थेरेपी के सब्जेक्ट्स आने चाहिए, प्रॉपर मैनुअल थेरेपी आना चाहिए, उसका थ्योरी प्रैक्टिकल, इन सब की थ्योरी प्रैक्टिकल्स आने चाहिए। और उसके बाद आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन होता है वो आना चाहिए। देन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स टेक्निक्स, परफॉर्मेंस टेक्निक्स उसके अंदर आपको पढ़ानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में आप सबको पढ़ा देना चाहिए, ताकि बच्चा जो है फाइनल ईयर में आके उसके पास लोड कम होता है, तो वो थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली उन चीज़ को प्रैक्टिस भी कर पाए, और साथ के साथ अपनी स्पेसिफिक को भी पढ़ा पाए। तो फाइनल ईयर में बच्चा जो है टोटल, आप जानते ही टोटल फिजियोथेरेपी पढ़ता है वो, चाहे ऑर्थो फिजियोथेरेपी हो, चाहे आपकी कार्डियो फिजियोथेरेपी हो, और गैट्रिक फिजियोथेरेपी हो, देन जनरल फिजियोथेरेपी हो, तो मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ता है। तो मेरा ये मानना है कि इन सब के साथ साथ आपको जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, चाहे आपका टेपिंग है, ड्राई नीडलिंग है, देन आपका और भी कई सारी मार्केट में टेक्निक्स हैं, उन कपिंग थेरेपी है, वॉटेवर, जो एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, वॉटेवर, तो ये सारी अलाइड थेरेपीज़ जो हैं आपको पढ़ा देनी चाहिए। थर्ड ईयर में स्टार्ट कर देना चाहिए, फाइनल ईयर में आके वो फाइनल तक जाएँ, ठीक है, और उसमें उनको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाए। और इसके साथ साथ सेकेंड ईयर से ही रिसर्च स्टार्ट हो जानी चाहिए, और बच्चों को फोकस करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिसर्च पे फोकस करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्या बोलते हैं, पेपर पब्लिकेशन पे फोकस करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चा जो है, जो भी वो सीख रहा है उसको वो रिसर्च के बेस पे इम्प्लीमेंट करेगा, और इम्प्लीमेंट करने के बाद वो फाइनल तक आते-आते उसको पता होगा कि एग्ज़ैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैनी ऑफ द कॉलेजेस, जो मैंने देखा है कि दे डोंट डू द प्रॉपर थीसिस वर्क, राइट। और बीपीटी में पास करने के लिए आई फील दैट बीपीटी और एमपीटी के अंदर यू शुड हैव अ वन प्रोजेक्ट, वन थीसिस, रिटन राइटिंग द थीसिस, वही प्रॉपर एक प्रॉपर आपके कहते हैं ना कि पेशेंट्स लेके और प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, और उस पर रिसर्च को पब्लिश होना चाहिए। तो उससे ये फ़ायदा मिलेगा कि बच्चा अगर बीपीटी के अंदर, मतलब अगर मैं होता तो मैं सब बच्चों को यही कहता कि आप फाइनल तक आते आते आप 2 या 3 पेपर प्रेजेंट करो, और 1 या 2 पेपर आप पब्लिश करो। तो उससे क्या होगा कि बच्चा जब फाइनल ईयर से निकलेगा तो वो उसको पता होगा कि उसने क्या किया है, और प्रैक्टिकल में उसने कैसे अपनी चीज़ों को पक्का बनाया है। अच्छा, एक सबसे बड़ी गलती जो होती है वो मैंने देखा है कि टीचर्स जो है प्रैक्टिस नहीं कराते बच्चों को। देखिए, खाली मशीन सिखा देने से, या सिर्फ बच्चों को मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स थ्योरेटिकली पढ़ा देने से, या मैनुअल फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स पढ़ा देने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चाहे आप थ्योरेटिकली भली मत पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को ये चीज़ सिखाइए कि कैसे करते हैं वो चीज़, और उनका हाथ इतना साफ होना चाहिए कि जब स्ट्रेचिंग कराने के लिए पैर ही पकड़ रहा है, तो वो पैर पकड़ने का तरीका ही ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो स्ट्रेचिंग हो वो इतनी सॉलिड आए, और उसके अंदर प्रेशर उसका बहुत कम लगे, राइट। तो मतलब उसको हर तरीके की मतलब बाय एंड ऑफ फिजियो बीपीटी उसको हर तरीके का एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए, उसको रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, उसको हर तरीके की मशीन्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको हर तरीके की मैनुअल टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट यू डोंट रिक्वायर द सर्टिफिकेशंस। जो जो लोग सर्टिफिकेशंस करते हैं कॉलेज के बाद,
कि भाई ये कर लूँ, ड्राई नीडलिंग कर लूँ, और वो भी इतने सारे फेक इंस्ट्रक्टर्स हैं, जबकि जबकि आप इसी डॉक्टर आर के मुदगिल के चैनल पे ही आप देख सकते हैं, मैंने एक लेक्चर लिया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कशॉप और मतलब लीगलिटीज़ ऑफ वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस। तो आप वो लेक्चर मेरा देख सकते हैं, इसमें आपको क्लियर क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के वर्कशॉप्स और सर्टिफिकेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। आपके करियर में कोई ग्रोथ नहीं। ग्रोथ कब आएगी? जब आप इस तरह के करिकुलम को पढ़ेंगे, जो कि आप बीपीटी के एंड तक आते आते आपका हाथ भी साफ होगा, आपको नॉलेज भी अच्छी खासी होगी, आपको रिसर्च नॉलेज भी होगी। और जब आप इस ऐसे करिकुलम के साथ जब आप फॉरेन में अप्लाई करने जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके पॉइंट्स भी लैकिंग नहीं होंगे। तो मेरा मेरा यही मानना है कि उसके बाद जब जब आप मार्केट में जाते हैं विद दिस काइंड ऑफ प्रॉपर नॉलेज, तो ऑब्वियस सी बात है, यू कैन फाइट कॉन्फिडेंटली विद दी अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं, या जो लोग आपको बोलते हैं कि भाई फिजियोथेरेपी ऐसा, फिजियोथेरेपी वैसा। सो यू कैन गिव देम आंसर विद योर नॉलेज, विद योर प्रॉपर स्किल्स। तो जब वो आपके स्किल्स देखेंगे, तो आई एम श्योर वो भी आपके मुरीद हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन मेक अ इम्पैक्ट ऑन योर upliftment, one of the impact on your upliftment of the profession. And that's why I appeal to everyone, those who are into the designing of the courses. Please upgrade your courses and design accordingly, and update your curriculum every 5 years with the new techniques, and promote the people to develop something new. So focus on the research, focus on the practical part of the subjects, so that every student will come up with some new techniques, and come up with some new high class fundas. So it will also increase the popularity of physiotherapy in the market. And also, when these kind of students get into the market, they will show their skills, and obviously your physiotherapy will goes up. So with this, I am ending my this thing. If you have any doubts, please feel to contact me, and I have given my all the contacts on the screen, the Facebook page, my Instagram, and my YouTube channel. So you can always contact me anyway. And if you have any doubts, please, I welcome you all. You can ask my any questions. Thank you so much. Jai Hind.